Hello student, today we are going to start the chapter microorganism, friends and foes. Earlier we had completed two chapter. The chapter we had studied cell, that will be also helping in this chapter to understanding this chapter. As you all know, the term microorganism refers for the tiny organism which are not visible by the naked eye. So what kind of organism they are? बहुत छोटे organisms होते हैं जो naked eye से visible नहीं होते हैं. But now we will talk about them in this chapter कि whether they are friends and foe, कि वो हमारे friends हैं या foes. And you know very well because of your earlier knowledge कि they are friends as well as foe. वो हमारे friends भी हैं और हमारे enemy भी हैं. So let's start the chapter. Whenever we start the chapter, we always start with the word bank, the hard words of the particular chapter. So we have prepared the PDF of the chapter. Some of the hard words will get from your book, and some of the we have sent it or written in the PDF. तो वो आपको मिल जाएंगे और मैं आपको in between the chapters इसके जो hard words हैं वो explain भी करती जाऊँ. Let's start the chapter. तो very first we talked about the microorganism. तो microorganism are the smallest structure or organism which are not visible by the naked eye, and they are also known as microbes. यहाँ तक clear हो गया? Now what is microbiology? Microbiology is the study about the microorganism. Microbiology is the study of the microorganism. Now what is microbiologist? You can guess. The scientist who study about the microorganism. जो scientist होते हैं जो microorganisms के बारे में study करते हैं, they are also known as microbiologist. Now we will talk about the microorganism कि microorganism are present all around us. ये harsh से harsh weather condition और environment condition में भी प्रेजेंट होते हैं. हर तरह के एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव करते हैं. इसके बाद हम बात करें इफ़ वी टॉक अबाउट होस्ट. तो होस्ट अगर हम देखा जाए तो जितने भी यहाँ पर लिविंग बीइंग हैं दे आर प्रोवाइडिंग द स्पेस और फूड टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो दीज ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग who provide them space, nutrition, they are host for the microorganism. I hope you understood these terminologies. Microorganism जिसको हम microbes भी बोलते हैं. Then microbiology, study of the microorganism. Then microbiologist, the scientists who study about the microorganism. Now we will start with the classification of the microbes. तो microbes के जो classification हैं that is about the very first group we have classified, that is bacteria. Very first we will talk about the bacteria. You must know about the bacteria. Bacteria का हमारे life में as a advantage friends और for disadvantage भी है. Advantage and disadvantages we will talk about later. बैक्टीरिया जो होते हैं स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड इनका जो शेप होता है वो 3 और 4, 5 क्लासिफिकेशन है. बट विल टॉक अबाउट दी 3 टाइप ऑफ शेप: कोकाई, बेसिलस एंड स्पाइरेला. कोकाई इज अबाउट दी राउंड शेप बैक्टीरियाज. ये बैक्टीरियाज कैसे होते हैं? राउंड शेप बैक्टीरियाज. नाउ व्हाट इज बेसिलस? तो बेसिलस आर द रोड शेप बैक्टीरिया. कैसे होते हैं ये? इनका शेप कैसा होता है? रोड शेप होता है. स्पाइरला जो होता है वो होता है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया. ये कैसे बैक्टीरियाज होते हैं? स्पाइरल शेप बैक्टीरिया. इसके अलावा कोमा बैक्टीरिया, विब्रियो भी प्रेजेंट होते हैं. नाउ व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया? जैसे कि बैक्टीरियाज अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो दे आर सेप्रोफिटिक एज वेल एज ऑटोट्रॉफिक. Saprophytic nutrition means they can derive their nutrition from the dead and decay material. And autotrophic bacteria, some bacteria are able to prepare their own food because some pigments are present in them. So they can derive their nutrition in both ways, saprophytic as well as autotrophic. If we talk about the structure of bacteria, तो bacteria का जो structure होता है वो simple cell. Earlier we talked about the prokaryotic cell.
तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का होता है। इस बैक्टीरिया में आपको साइटोप्लाज्म भी मिलेगा, जो सेल की जो 3 फंक्शनल रीजन है। अर्लियर वी टॉक कि किसी भी सेल का 3 फंक्शनल रीजन क्या होता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ये किसी भी सेल के 3 फंक्शनल रीजन होते हैं। तो इस बैक्टीरिया में भी ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल क्यों है, हमने पहले भी बात की थी कि यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस होता है, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, दैट इज स्कैटर्ड, दैट इज नॉट कवर्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। That's why this nuclear material or hereditary material present in bacteria is known as nucleoid. इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी होती है, न्यूक्लियोइड। ये वर्ड आपने पहले भी वर्ड बैंक में राइट कर रखा है। सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोइड। तो इनका जेनेटिक मटेरियल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। इसके अलावा साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और इसके अलावा इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम फ्लैजिला कहते हैं। ये फ्लैजिला जो होता है इसको हेल्प करता है इन द मूवमेंट। तो दिस इज अबाउट द बैक्टीरिया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि बैक्टीरिया का शेप डिस्कस किया हमने और इसके शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फॉर फंगी। नेक्स्ट ग्रुपिंग कौन सा है हमारा, फंगी। तो फंगी के एग्जाम्पल्स मैंने पहले ही राइट कर दिए, यीस्ट है, ब्रेड मोल्ड है। आपने पहले भी एक एक्टिविटी कई बार रीड करी और आपके बुक में भी है कि ब्रेड पे अगर हम वाटर स्प्रिंकल करेंगे तो उस वाटर को थोड़े दिन जब उसको मॉइस्चर में मिलेगा या रख देंगे, कुछ घंटों के बाद में 1-2 दिन में वहाँ पर कुछ अपीयरेंस स्टार्ट हो जाता है, जिसको वो एक तरह का क्या होता है, फंगी होता है, जिसको हम यूज़ में नहीं लेते, वो ईडेबल ब्रेड नहीं रहता। तो उस कंडीशन में फंगीज की हम बात करें तो ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमेशा क्या होंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर, सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं। फंगीज जो है यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी। इसमें फंगीज में आपने जनरली यीस्ट का नाम बहुत सुना है, ये एक यूनिसेल्युलर फंगस है, इसलिए इसको मैंने वेरी फर्स्ट राइट किया है। इसके बाद ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। नॉन ग्रीन का मतलब क्या है, लैक ऑफ क्लोरोफिल, इट मीन्स देयर इज नो क्लोरोफिल, तो डेफिनेटली दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, so they are derive their nutrition by the process of saprophytic nutrition and somewhere they are parasitic also, but mostly they are saprophytic, mostly they are जो अपना न्यूट्रिशन है वो डेड और डीके मटेरियल से ही डिराइव करते हैं। इसके अलावा फंगीज के बारे में एक खास बात ये है कि इनका जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। क्यों खास बात है, बिकॉज जो प्लांट्स में सेल वॉल होता है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो फंगी में जो सेल वॉल होगा दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो यहाँ हमने ये बात कर ली। सो दिस इज अबाउट दी फंगी की क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं। नॉन ग्रीन प्लांट आप इसको मान सकते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता, इनका न्यूट्रिशन मोस्टली सेप्रोफिटिक रहेगा, और आपको पता है कि अगर सेप्रोफाइट्स नहीं रहे तो पूरा का पूरा जो अर्थ है वो हीप ऑफ गार्बेज बन सकता है। तो ये अबाउट हो गया आपका, ये हमने बात कर ली अबाउट द फंगी। जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वो क्या है, एल्गी। एल्गी डेफिनेटली बहुत नाम सुना होगा आपने, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, और इन एल्गीज में अगर हम बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं जनरली। आपने पॉन्ड में या कई जगह आप देखते हैं कई तरह का, जो कहीं पानी ज़्यादा जमा हो जाता है बारिश में भी तो वहाँ पे काई आ जाती है, वो भी एक तरह का क्या है, एल्गी है। यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। इसके अलावा ये ग्रीन प्लांट होते हैं तो इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल present, it means they are able to perform photosynthesis. Algae are able to perform photosynthesis. तो ये एल्गी के बारे में हो गया। इसके एग्जाम्पल्स आप बात कर लो, क्लेमाइडोमोनास है और स्पायरोगायरा है। मीनिंग ये जो एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर का है, और स्पायरोगायरा जो फिलामेंटस एल्गी होती है ये मल्टी सेलुलर। तो एल्गीज आर ऑल्सो दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इसके अलावा एल्गी का कुछ ईडेबल पर्पस भी होता है, we'll talk about this later.
Now we will continue with the protozoa. Protozoa are the unicellular organism and they are present in damp condition or in a aquatic condition. They are present. They can derive their nutrition by the capturing food और they are parasitic also. और different kind of nutrition, different जो आपके nutrition जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटोजोआ में. जैसे ये दे कैन कैप्चर देयर फूड, इट मीन्स दे आर शोइंग होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर फूड को कैप्चर करके जो उसके क्रूशियल स्टेप्स होते हैं जैसे इंजेशन है, एसिमिलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, दीज काइंड ऑफ स्टेप्स जब हम सॉलिड फूड को इनगल्फ करते हैं जैसे कि ह्यूमन में होता है. एंड पैरासिटिक कंडीशन ऑल्सो दे कैन शो. इसके अलावा यहाँ जो युग्लिना है इसका एग्जाम्पल, दे आर शोइंग द मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. मिक्सोट्रॉफिक मतलब युग्लिना में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है जिसमें कि ये एज अ अपने फूड को ऑटोट्रॉफिकली प्रिपेयर भी कर लेता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और अदरवाइज ये हिट्रोट्रॉफिकली भी अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर सकता है. इसी तरह प्लाज्मोडियम को भी आप जानते हैं, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रोटोजोआ जो कि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड किया जाता है. तो दिस इज अबाउट द प्रोटोजोआ. मतलब मेनली जो प्रोटोजोआ होते हैं वो जो डिजीज कॉजिंग ज़्यादा होते हैं ये प्रोटोजोआ, और प्लस ये प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, अपने फूड को पैरासिटिक मोस्टली कैप्चर भी कर सकते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी इनमें प्रेजेंट होता है. और इनका वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मूवमेंट भी शो करते हैं. तो ये इस तरह आपका प्रोटोजोआ हो गया. आफ्टरवर्ड वी विल टॉक अबाउट दी वायरसेस, जो सबसे ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई भी माइक्रोब्स है तो वो कौन है, वायरस है. सबसे पहले इसको बीजरनिक ने डिस्कवर किया था और इसका मीन होता है पॉइजनस. पॉइजनस मतलब जहरीला, और इसका एक और वर्ड है दैट इज वेनोमस. तो वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक. वैसे तो सभी माइक्रोस्कोपिक है लेकिन वायरसेस जो है बहुत उससे भी ज़्यादा स्मॉलर होते हैं साइज में. इनके लिए स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है फॉर सीइंग देम. प्लस इनमें ये पॉइजनस होते हैं, इनका मीनिंग ही पॉइजनस है, वेनोमस है. इनका जो नॉन लिविंग स्टेट होता है दैट इज नोन एज वीरियंस. व्हाट डू यू मीन बाय वीरियंस? की जो वायरसेस की नॉन लिविंग स्टेट होती है दैट इज वीरियंस. जनरली वायरसेस आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड कैप्सिड. तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका, डीएनए और आरएनए. तो वायरसेस में मेनली डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, दोनों में से एक ही प्रेजेंट होगा. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड. तो ये इसमें प्रेजेंट होता है. कैप्सिड का आउटर कोर इसमें प्रेजेंट होता है जिसको दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो viruses are mainly consist of genetic material, either DNA or RNA, and they are covered with the capsule that is made up of protein. Now all viruses are parasitic. मतलब viruses के अंदर न्यूट्रिशन का जो प्रोसीजर है, न्यूट्रिशन है वो क्या होगा, हमेशा कैसा होगा, पैरासिटिक. इसके बाद अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस जो हैं they are showing a different pattern. What different pattern they are showing? Meaning if they are present outside of the host body or living being, it behave like a non-living thing. When it come in contact of the living organism, it enter inside the living organism, it start multiply, अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है, रिप्रोडक्शन करने लगता है, अपने नंबर को इंक्रीज करने लगता है. तो व्हाट इज द थिंग इम्पॉर्टेंट कि ये इट इज़ आउटसाइड द लिविंग बॉडी, इट इज़ नॉन लिविंग, और बॉडी के अंदर ये क्या है, लिविंग है. तो वी कैन से कि दिस इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, कि कोई भी लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग थिंग है उनके बीच में हम वायरसेस को क्या कह सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक. और वी कैन से दैट दे आर प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग और नॉन लिविंग. तो दिस इज अबाउट द वायरसेस. सो आई हैव एक्सप्लेन यू द पैराग्राफ ऑफ book present, and I will tell you the question we are covering. So firstly we will talk about the how many groups of microorganism we discuss. We discuss about the bacteria, we discuss about the fungi, we discuss about the algae, we discuss about the protozoa, and we discuss about the viruses. Now I will tell you on
in your book, page number 26, the questions we are covering, you have to do this question answer in your copy, because whenever the chapter will be complete, this time you have to present your copy in school and we will assess your homework. So the question on page number 26, very first question we are covered here, what are microorganisms? So you know the answer of this, you can write it this. And the second question we are covering from this, how are viruses different from other microorganisms? So what we covered, कि outside the human body or living body they are non-living, or inside the living being they become living, and they capture the cellular machinery of the living. So that's why this is difficult to making the vaccines of virus. We will talk about this upcoming topics. So these two questions you have to do. Thank you.